another verb for sunna. The another verb for sunnah should be listen. Deepika, what should be the second form of listen? The second form of listen should be listened. Shivang, what should be the third form of listen? The third form of listen is also listened. Neha Didi, what should be the verb for irada karna? The verb for irada karna should be uh, intend. Sorry, Uh, come again, Neha. the verb for irada karna should be intend. Uh, Shivang, Anita ji, what should be the verb for what should be the second form of irada karna? Intend. Intend. Sorry, What should be Anita ji? What should be the second form of intend? The second form of in the second form of intent should be uh, inted. मालूम नहीं मुझे. I don't know. Inted. Okay. sorry, Neetaji. Sir, क्यों ना? Okay. Deepika, can you tell me what should be the noun of intent? Passer. You can ask this question to somebody else. Nidhi, what is the noun for intend? The noun of intent is intent. That is irada. Uh, Shivang, what is the noun of intent? Didi, the noun of intend should be intended. Sorry, come The, again. no- the noun of intend should be I don't know. Okay. Namrata Didi, what should be the noun of intend? Wang, the noun of intent should be intention. That is irada. Neha, what should be the second form of no sir, it is not right question. Shivang. Good morning, Namrata Didi. Anybody can ask. Okay. Neha Uh, Didi? Okay, Deepika Didi. uh, Shivang, what should be the Hindi meaning of intention? The Hindi meaning of intention should be irada. दोस्तों, जब तक आप लिख रहे हैं तब तक मैं एक सूचना दे देता हूँ. आप लिखते रहिए. इंटेंट वर्ब अकेले प्रयोग नहीं हो सकती. इसका प्रयोग जब भी आपको करना होगा इसके साथ दूसरी वर्ब लगाना होगी.
आप में से किसी को पता है कि जब दूसरी वर्ग को जोड़ते हैं तो कौन सा नियम लगता है? एक वर्ग से समय दूसरे वर्ग को जोड़ने के लिए, हाँ, एनीबडी कैन टेल, सर जूनियर और फेविकोल। सीनियर। सर टू वेरी नाइस। टू नाम के प्रपोजिशन से दो क्रियाओं को हम चिपका देते हैं, इसलिए हमने उसको एक नाम दे दिया है। क्या नाम दिया है बच्चों? फेविकोल। फेविकोल। तो हम एक क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, तुम सेम क्वेश्चन आगे बढ़ा देना। शिवांग, कैन यू इंटेंड टू बी सक्सेसफुल? Yes, sir. I can intend to be successful. क्या आप सफल होने का इरादा कर सकते हैं? हाँ सर, मैं सफल होने का इरादा कर सकता हूँ। दीदी, can you intend to be successful? Yes, Shiva, I can intend to be successful. दीदी, क्या आप सफल होने का इरादा कर सकती हैं? हाँ शिवांग, मैं सफल होने का इरादा कर सकती हूँ। दीपिका, कैन यू इंटेंड टू बी सक्सेसफुल? Yes, Nidhi, I can intend to be successful. दीपिका, क्या आप सफल होने का इरादा कर सकते हैं? जी निधि, मैं सफल होने का इरादा कर सकती हूँ। नम्रता, कैन यू इंटेंड टू बी सक्सेसफुल? Yes, Deepika, I can to be intent successful. Sorry, दीदी, come again. I can be intent successful. Sorry, Namrata. I can intend to Change be the person, successful. she can answer later. Nidhi, change the person. Okay, sir. तो मैंने करेक्ट बोला. Shivang, Carry on. Neha, can you intend to be successful? Yes, Deepika di, I can intend to be successful. Complete the process, दीदी. नेहा, क्या आप सफल होने का इरादा कर सकती हैं? हाँ दीपिका दी, मैं सफल होने का इरादा कर सकती हूँ. नम्रता दी, कैन यू इंटेंड टू बी सक्सेसफुल? Yes, Neha, I can intend to be successful. नम्रता दी, क्या आप सफल होने का इरादा कर सकती हैं? हाँ नेहा, मैं सफल होने का इरादा कर सकती हूँ. अनीता जी, कैन यू इंटेंड टू बी सक्सेसफुल? Yes, I intend to be successful. कम अगेन अनीता जी. सॉरी, Yes, I can intend to be successful. क्या आप सफल होने का इरादा कर सकती हैं? जी हाँ, मैं सफल होने का इरादा कर सकती हूँ. Who is rest? Like Shivang. I'm Shivang, just. can you? Shivang, can you intend to be successful? Yes, I can intend to be successful. क्या आप सफल होने का इरादा कर सकते हैं? हाँ, मैं सफल होने का इरादा कर सकता हूँ. गुड मॉर्निंग शिवांग. I think all are done. Nobody is rest, दीदी. Okay, thank you guys. Should we play second round with creativity? Yes, sir, we should.
So who will start? चल I सब will मैं start. ओके आफ्टर यू शिवांग। Shivang, you can start. Ask Nidhi चल दीदी। दीदी करना क्या है पहले सुन लो। आपको दूसरी वर्ब जो हमने सेम टू सेम रखवा दी थी वो बदलना होगा। सबको अलग अलग वर्ब रखना है इस बार। दीदी can you intend to remain calm? No, Shivang, I cannot. Uh, I cannot intend to remain calm. दीदी क्या आप शांत रहने का इरादा कर सकती हैं? नहीं शिवांग, मैं शांत रहने का इरादा नहीं कर सकती भैया। दीपिका, कैन यू इंटेंड टू कीप फास्ट ऑन करवा चौथ? Yes, Nidhi, I can intend to keep fast on Karwa Chauth. दीपिका, क्या आप करवा चौथ में व्रत रखने का इरादा कर सकती हो? जी निधि, मैं करवा चौथ में व्रत रखने का इरादा कर सकती हूँ। नम्रता, गो अहेड। नम्रता, कैन यू इंटेंड टू complete your work? Yes, Deepika, I can intend to complete my work. नम्रता, क्या आप अपना काम पूरा करने का इरादा कर सकती हैं? हाँ दीपिका, मैं अपना काम करने का इरादा कर सकती हूँ। सॉरी, जी समथिंग दीदी इज प्लीज मिसिंग। कम ऑन। हाँ, मैं अपना काम करने का इरादा रख सॉरी सकती हूँ या कर सकती हूँ। come again please. कम अगेन दीपिका। नम्रता, कैन यू इंटेंड टू complete your work? हाँ दीपिका, मैं अपने काम करने का पूरा काम को पूरा करने का इरादा रख सकती हूँ। So there you are. नेहा, कैन यू इंटेंड टू बी ऑनेस्ट इन इंग्लिश क्लास? नहीं बेटा, बी वर्ब हमने रख ली थी। अब बी वर्ब आप नहीं प्रयोग कर सकते। पहले तो 3 का दंड दे दो नम्रता। इट्स रेनी कैट्स एंड डॉग्स हियर। यहाँ मूसलाधार बारिश हो रही है। द बेसिक नीड्स ऑफ मैन आर फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान है। और द वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। नेहा, कैन यू इंटेंड to read this chapter? Yes, Neha, Namrata. can Yes, you Namrata. intend to read this chapter? Yes, Namrata ji, I can intend to read this chapter. क्या आप यह चैप्टर पढ़ने का इरादा रख सकती हैं, कर हाँ सकती मैं हैं? हाँ मैं यह चैप्टर पढ़ने का इरादा कर सकती हूँ। नम्रता, थोड़ी देर बाद एक सेंटेंस और प्रैक्टिकल बनाना, क्योंकि कोई चैप्टर पढ़ना इरादा करने जैसी बड़ी चीज तो नहीं है ना बेटा। अब अगर कोई कहता है कि शिवांग का सेंटेंस भी तो नॉन प्रैक्टिकल था, लेकिन वो महिलाओं के हिसाब से बहुत प्रैक्टिकल था। अगर कोई फीमेल से पूछे कैन यू इंटेंड टू बी काम, तो ये बड़ी बात होती है ना। तो उस हिसाब से अगर देखें तो वो अच्छा सेंटेंस था। कैन यू इंटेंड टू रिमेन काम, अच्छा सेंटेंस था। थोड़ी देर बाद अच्छा सेंटेंस बनाना जिसमें लगे कि इरादा करने लायक कोई काम दिया जा रहा। तब तक नेहा आगे बढ़ाएगी, हम पूरा राउंड घुमा देंगे। नेहा, अनीता जी, can you intend to be pluck the flower? Didi you got 3D, firstly give 3D.
नेहा, शिवांग Yes. ने आपसे निवेदन किया, यू गॉट 3D, जिसका हिंदी अर्थ होता है आपको 3 का दंड मिला है। बी क्रिया अभी थोड़ी देर पहले ही 3 के दंड की का कारण बनी थी। Here you are लीजिए. Software makes a sweet malt. सॉफ्टवेयर मिक्स स्वीट माल्ट अभ्यासी व्यक्ति को पूर्ण बनाता है. वर्क इज वर्सेप. सॉरी दीदी, सॉफ्टवेयर मिक्स स्वीट माल्ट, धीरज का फल मीठा होता है. वर्क इज वर्सेप, कर्म ही पूजा है. अनीता जी, एक कैन यू सेकंड इन रुकना बेटा नेहा, ये वर्क इस वर्शिप तुम सब लोगों को बड़ी प्यारी इडियम है क्या? सबको वो आखिरी में सब लोग वर्क इस वर्शिप ही रख देते हैं, और ज्यादा इडियम दिए नहीं है क्या बेटा हमने तुम्हें? चलो पूछो तो किसी को कुछ याद नहीं आता होगा तो बाकी वैसे छोटा सा है, याद आ जाता है। बेटा, तुम्हें पता है ना दंड देने के लिए रजिस्टर को देखना अलाउड है। जैसे सबको बता दें, हम फिर से बता दें, आप रजिस्टर सामने खोल के रखें अपने टेबल पर, और उसमें से वो वाले मुहावरे बोलें जो आपने नहीं बोले हैं या जो आपको कठिन लगते हैं, तब तो वो जुबान पे आएंगे ना बेटा। वर्क इज वर्शिप तो जुबान पे है ऑलरेडी। सब पूछो बोलना बेटा। है तो सब बोल. अब रहने दो, अगली बार ध्यान रखना। पूछो। अनीता जी, कैन यू इंटेंड टू बी टू बी मेक. फिर 3 का दंड बेटा आपको इस सॉरी बार। नेहा. बेटा तुम्हारी मनोकामना पूरी हो गई, इस बार अच्छे वाले 3। जी सर. तो लगता है जानबूझ के गलती की दीदी ने। बेटा वो जुबान पे बी घुस गया है जबरदस्ती। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे. जहाँ चाहे वहाँ राय. हेयर वी गो. शुरू करते हैं. दैट इज अर्थात. नेहा, दैट इज बोलते समय ऐसा नहीं लगता कि अपन जबरदस्ती एक छोटा सा इफेक्ट जिसका कोई अर्थ नहीं है, अर्थ बताने के लिए होता है? एक्चुअली सर वो अभी एकदम से यूज नहीं किया सर, तो वो जल्दी से नहीं आता है. अच्छा, ठीक है। सर यूज करेंगे तो वो आने लगेगा फिर से. ओके सर. दीदी गुड मॉर्निंग। अनीता जी, कैन यू इंटेंड टू टू बी कैन यू इंटेंड कैन यू इंटेंड प्ले टू प्ले फुटबॉल. नेहा, it's right, but it is not working now. Yes, I can. अनीता जी, कैन यू इंटेंड प्ले टू प्ले टू प्ले का द फुटबॉल द फुटबॉल. बेटा नेहा, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम अनीता जी को फुटबॉल खेलने का इरादा करवा रही, कुछ तो सोचा करो। शिवांग से पूछा होता तो सेंटेंस ठीक लगता। उनके बड़े बड़े बच्चे हो गए, इस उम्र में तुम उनको फुटबॉल खेलने का इरादा करवा रही। कुछ तो सोच समझ के सेंटेंस बोला करो। So, अनीता जी, कैन यू इंटेंड टू प्ले चेस. अनीता दीदी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनीता जी. Yes, I can intend to play chess.
अनीता जी, क्या आप चेस खेलने का इरादा कर सकती हैं? जी हाँ, मैं चेस खेलने का इरादा कर सकती हूँ। शिवांग शिवांग हो गया, शिवांग का क्या नहीं हुआ? शिवांग, कैन यू इंटेंड टू एस्ट्रोलॉजी? तो कैसे बोलेंगे उसको? कैन यू इंटेंड टू, सही है, कैन यू इंटेंड टू टू सर नहीं आ रहा, कुक? चलिए, नहीं समझ आया हूँ। मैं अनीता जी के बिहाफ में एक सेंटेंस शिवांग से पूछता हूँ। शिवांग, ये सेंटेंस मैं जानबूझ के सेम वर्ब ले रहा हूँ ताकि नेहा को समझ में आए। शिवांग, कैन यू इंटेंड टू प्ले chess in Olympics? Yes, sir. I can intend to play chess in Olympics. अब ये बड़ी बात है ना, चेस खेलने का इरादा करने की कोई वो जरूरत थोड़ी है, लेकिन ओलंपिक्स में चेस खेलना ये बड़ी बात है, इसके लिए इरादा करने की जरूरत है। अभी Sir, सभी can लोगों, I हाँ निधि, sir can I ask to Shivank one more question, please? प्लीज आज Shivank, can you intend to marry this year? No, I cannot. Don't sigh, भैया, don't sigh. No, I cannot intend to marry. शिवांग, क्या आप इस साल शादी करने का इरादा कर सकते हो? नहीं, मैं इस साल शादी करने का इरादा नहीं कर सकता। 17 का हूँ भाई, नाबालिग। अनीता जी, एक्चुअली इस क्लास की मूल प्रोसेस यही है, एंजॉय करते हुए सीखना इस क्लास की मूल प्रोसेस। लेकिन जो लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं होते हैं, जागरूक नहीं होते हैं और सतर्क नहीं होते हैं, उनको थोड़ा सा भारी सा महसूस होता है। वरना जिस तरह से ये बच्चे हंसते हुए, खेलते हुए, एंजॉय करते हुए सेंटेंस भी बना लेते हैं, गलती भी नहीं होती और बिल्कुल सटीक होता है। अब शिवांग 16-17 साल का है, अभी उससे आप पूछेंगे शादी करने का इरादा, तो वो तो फट से कान पकड़ के नो ही करेगा। और वास्तव में ये बड़ी बात है कि अभी तो शादी करने का इरादा वो कर नहीं सकता। तो ऐसी चीजें, अब ऐसा नहीं है कि निधि ने कोई बहुत तीर मार लिया हो, उसके दिमाग में थोड़ा सा एक कीड़ा काटा कि चलो शिवांग की टांग खींचते हैं, इसलिए अच्छा उसने ये सेंटेंस किसी और से नहीं पूछा, क्योंकि बाकी सब लोग तो बड़ी उम्र के लोग हैं, कुछ लोग शादीशुदा है, हम भी हैं। तो उसने शिवांग से ही ये सेंटेंस पूछने की अनुमति मांगी और उसने उसको एंजॉय किया और शिवांग ने भी उसको एंजॉय किया। अब नेहा अपनी सामने वाली खिड़की बंद रहती है, ये खिड़की जो बंद रहती। Can I? हाँ प्लीज, यू कैन आस्क। Namrata, can you intend to start new job? Yes, Deepika, I can intend to start new job. नम्रता, क्या आप नया जॉब शुरू करने का इरादा कर सकती हैं? हाँ दीपिका, मैं नई जॉब शुरू करने का इरादा कर सकती हूँ। अब दीपिका, ये सेंटेंस प्रैक्टिकल नहीं है, तुमने हिंदी में सोचा और वैसा इंग्लिश में बना दिया। ये टेक्निकल प्रैक्टिकल कैसे होगा मैं पूछता हूँ, तुम ध्यान से सुनना, जवाब नम्रता ही देगी।
Namrata, can you intend to switch this job? Yes, sir, I can intend to switch this job. नम्रता, क्या आप इस जॉब को छोड़कर दूसरा जॉब ज्वाइन करने का इरादा कर सकती हैं? हाँ सर, मैं इस जॉब को छोड़ करके दूसरी जॉब ज्वाइन करने का इरादा कर सकती हूँ। अब हाथ उठाइए, स्विच वर्ब किस किसने इस सेंस में सुनी थी पहले? देखो सर दीपिका सुनी तो थी। आई सुनी हर्ड। थी, जी अनीता सुनी जी ने थी। सुनी थी। तो ये मल्टीनेशनल लेवल पर इस क्रिया का बहुत प्रयोग हो रहा है। आए दिन प्राइवेट वाले स्विच करते हैं, और स्विच स्विच से ही बना है। अपन कोई भी बिजली का स्विच है, यहाँ करते हैं या उधर करते हैं, तो एक फेस से वो दूसरे फेस पे जाता है। जैसे ट्यूबलाइट का अगर बटन अपन ऑन करते हैं तो वो ऑफ फेस से ऑन पे आता है, या ऑन से ऑफ के फेस पे चला जाता है। इसे कहते हैं स्विचिंग। एक जॉब को छोड़ के दूसरे जॉब को ज्वाइन करना। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में तो प्रमोशन तब मिलता है जब नंबर आता है और बहुत उम्र हो जाती है, लेकिन प्राइवेट वालों को प्रमोशन की जरूरत नहीं होती। वो एक कंपनी छोड़ते दूसरे में चले जाते, दूसरे छोड़ते तीसरी पकड़ लेते, तो हर बार उनको बढ़ के वेतन मिलता है। इट इज कॉल्ड स्विचिंग। इसको स्विचिंग कहते हैं। चलिए तो निधि, हाँ प्लीज। can you intend to climb in mountain? बेटा, यहाँ एक प्रपोजिशन, एक आर्टिकल लगेगा। कोई कोई बता सकता है कौन सा आर्टिकल? Sir, in the mountain. प्रपोजिशन नहीं लगेगा, केवल आर्टिकल। Okay. Nidhi, can you climb the mountain? No, Namrata, I cannot climb uh, the mountains. Sorry, Nidhi, come again. Can you intend to climb mountain? No, I cannot intend to climb the mountain. Come again, please. No, I cannot uh, intend to climb the mountain. क्या आप माउंटेन में चढ़ने का इरादा रख सकती हैं? नहीं नम्रता, मैं तो माउंटेन में चढ़ने का इरादा नहीं रख सकती हूँ। इरादा रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है निधि। No, no, because I am not well. That's why. Deepika, एक can you? मिनट, एक Okay. मिनट। नम्रता, तुम अपने सेंटेंस में माउंटेन की जगह ऑब्जेक्ट में अगर एवरेस्ट रखती तो और प्रैक्टिकल लगता, राइट? यस सर, सर मैंने यही सोचा था फिर। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग जिस प्रोसेस से गुजरते आ रहे हो 27 साल से, उसमें किताबी शब्द रखने की आपको आदत पड़ गई है, और इस क्लास में प्रैक्टिकल शब्द रखना होता है। धीरे धीरे आप भी रखने लग जाओगे, और आप उसको एंजॉय भी करोगे, जैसे निधि और शिवांग ने भी एंजॉय किया। सर तो आप मैंने भी भी स्विच का सोचा था, पर फिर मैंने स्टार्ट ही यूज किया। मैंने स्विच सोचा था पहले। रख देना था बेटा। चलो ठीक है, अब निधि की बारी। निधि प्लीज। Shivang, can you? Sir, I have to ask Shivang. Deepika, पूछ लो, हु इज sir, रेडी? who is ready for answer? I am ready for answer. Shivang, can you intend to come back in your family? Yes, I can intend to come back in my family.
शिवांग, क्या आप अपने परिवार में आने का इरादा कर सकते हो? वापस आने का? हाँ, मैं अपने परिवार में वापस आने का इरादा कर सकता हूँ। शिवांग, यहाँ प्रपोजिशन की गलती हुई है और जो दीदी ने प्रपोजिशन लगाया है एक्चुअली उन्होंने हिंदी का सोच के इंग्लिश में वो गलत प्रपोजिशन लगा दिया। अब मैं हिंट कर रहा हूँ, किसी भी स्थान पर आने या जाने के लिए हम कौन सा पासपोर्ट, पासपोर्ट तो वीजा लगता है। वो वही लगेगा, भले ही आप हिंदी में कुछ भी बोले, इंग्लिश में वही लगेगा। ओके सर। शिवांग, कैन यू इंटेंड टू कम बैक टू जबलपुर? Yes, I can intend to come back to Jabalpur. शिवांग, क्या आप जबलपुर आने का इरादा कर सकते हो? जबलपुर हाँ, वापस मैं आने का? जबलपुर वापस आने का इरादा कर सकता हूँ। आ जाओ भैया। दोस्तों, मैं अनीता जी को एक उदाहरण देने के लिए बिल्कुल एक सरल सा सेंटेंस बना रहा हूँ। जो सबसे आसान वर्ब होती है मैं वो रख के बता रहा हूँ, लेकिन वो सेंटेंस इसलिए मजबूत और प्रैक्टिकल हो जाएगा कि मैं उसमें ऑब्जेक्ट ऐसा जोड़ रहा हूँ जिससे वो सेंटेंस अच्छा लगेगा, प्रैक्टिकल लगेगा और वो अच्छे से आंसर भी दे देंगे और फिर उनके जहन में एक अच्छा सा सेंटेंस जन्म ले लेगा। नेहा, तुम भी इसको सुन लो। अनीता जी, कैन यू इंटेंड टू गो टू मून? Yes, I can intend to go moon. जी, वीजा पासपोर्ट पे लगा लो। शिवांग, आपको Go इशारा to the कर, moon. प्लीज रिपीट योर सेंटेंस। Yes, I can intend to go to the moon. अब देखिए दोस्तों, नेहा तुम भी देखना। नेहा और अनीता जी, मैंने कोई बड़ी भारी वर्ब नहीं ली, मैंने गो नाम की वर्ब ली। लेकिन जैसे ही मैंने मून नाम का ऑब्जेक्ट जोड़ा तो वो सेंटेंस इरादा करने वाला सेंटेंस हो गया। अगर मैं आपसे पूछता कैन यू इंटेंड टू गो टू द मार्केट, जैसा किताबों में लिखा रहता है, तो उस सेंटेंस में कोई दम नहीं होता। लेकिन मैंने मार्केट की जगह मून रख दिया तो चांद पे जाना एक इरादा करने वाला ही काम होता है और उससे सेंटेंस प्रैक्टिकल बन गया, इंटेंट को पूरा जस्टिफाई कर रहा है। द सेंटेंस इज कंप्लीटली ब्यूटीफुली जस्टिफाइंग इंटेंट। अब आप चाहें तो थोड़ा समय लें और कोई सी भी आप सरल क्रिया जो भी हमारे आसपास की है, ऑब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जिसमें लगे कि आप इरादा कर रहे हैं। तब तक शायद दीपिका सेकेंड आई। बेटा, दीपिका दीदी बहुत देर से हाथ उठा रही है, उनको पूछ लेने दो। ready? I am ready. I am ready. नेहा शिवांग। से पूछ लो बेटा। नहीं नहीं दीपिका, अगर ओके सर। पर्टिकुलर सेंटेंस ना हो तो नेहा से पूछ लो, और ओके अगर ऐसा कोई मजाक वाला है तो फिर शिवांग की टांग खींच सकती है। नेहा, can you intend to spread awareness about vaccination? बहुत खूबसूरत सेंटेंस है दीपिका। Come again, Deepika di. Can you intend to spread awareness about vaccination? Uh, I forgot. I forgot, Deepika di. बेटा म्यूट कर लो। अब दीपिका सेंटेंस रिपीट नहीं करेगी, 2 बार उसने बोल दिया है। अब मैं नम्रता को पहले मौका दे रहा हूँ। Yes, Deepika, I can intend to spread awareness about vaccination. Namrata,
क्या आप अवेयरनेस टीकाकरण, को क्या, टीकाकरण, जागरूकता। जागरूकता, क्या आप टीकाकरण के बारे में जागरूकता फैलाने का इरादा कर सकती हैं? हाँ, मैं टीकाकरण के लिए जागरूकता फैलाने का इरादा कर शिवांग, रेक्टिफाई योर मिस्टेक। प्लीज शिवांग, कम अगेन, नम्रता। Your voice was chopping, Namrata. I could not listen. Come again, please. कैन यू इंटेंड टू रेक्टिफाई योर मिस्टेक? Yes, of course, Didi. I can intend to rectify my mistake. शिवांग, क्या तुम अपनी गलती सुधारने के का इरादा रख सकते हो? हाँ बिल्कुल, मैं अपनी गलती सुधारने का इरादा रख सकता हूँ। दीपिका दीदी, can you intend to teach nursery students? Yes, Sevang, I can intend to teach nursery students. दीदी, क्या आप नर्सरी के बच्चे को पढ़ाने का इरादा कर सकती हैं? हाँ शिवांग, मैं नर्सरी के बच्चों को पढ़ाने का इरादा कर सकती हूँ। हु इज रेडी? आई एम रेडी। I am ready. नंबर अनीता जी, कैन यू इंटेंड टू कैंसल योर फ्लाइट टिकट? Yes, I can intend to cancel my flight ticket. अनीता जी, क्या आप अपनी फ्लाइट की टिकट कैंसिल करने का इरादा कर सकती हैं? जी हाँ, मैं अपनी फ्लाइट टिकट कैंसिल करने का इरादा कर सकती हूँ। कैन यू इंटेंड टू शिवांग sorry, Shivang, can you intend to go to abroad? दीदी, your voice दोस्तों, Go to clear. the मैं दो सूचनाएं देने जा रहा हूँ। go to the पहली abroad. तो ये, मेरी मोबाइल की बैटरी केवल 9% बची है, कभी भी Okay. ब्लैंक हो जाएगा। हमारा समय भी हो गया है। जी। और एक बहुत खूबसूरत गलती की है अनीता जी ने। फॉरेन और अब्रॉड पर्यायवाची शब्द हैं, दोनों के पहले टू कभी नहीं लगता है। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम भविष्य में देने की तैयारी कर रहे हैं, नोट कर लें दिमाग में, और चाहे तो रजिस्टर। और कहाँ कहाँ टू नहीं लगता है आगे चल के मैं और बताऊंगा। आज इन दो जगहों के पहले टू नहीं लगता है, ये नोट कर लीजिए। ना अब्रॉड के पहले लगेगा, ना फॉरेन के पहले नहीं लगेगा, क्योंकि ये दोनों स्थान नहीं है। विदेश, हमारा देश भी दूसरों के लिए विदेश है। पाकिस्तान हमारे लिए विदेश है, हम पाकिस्तान वालों के लिए विदेश है। नेपाल बिल्कुल लगा हुआ है, फिर भी वो हमारे लिए विदेश है। इंडिया नेपाल वालों के लिए विदेश है। तो विदेश कोई स्थान नहीं होता, जो दूसरा देश है वो विदेश है, इसलिए उसके पहले टू नहीं लगेगा। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसी ही छोटी छोटी बातों में नंबर कट जाते हैं, और हम सोचते हैं मैं तो बढ़िया सही लिख के आया था, नंबर क्यों काट लिए। इतनी सी बारीक चीजें होती हैं। तो हमारी बैटरी 8% बची है, समय भी हो गया है। आप जारी रखना चाहते हैं, जारी रखें। जी, कंप्लीट द प्रोसेस। मुझे बोलना है ना? Yeah. Can you intend to sorry, Sivang, can you intend to go abroad? No, Anita Didi, I cannot intend to go abroad because my India is good.
शिवांग, क्या तुम विदेश जाने का इरादा कर सकते हो? नहीं, मैं विदेश जाने का इरादा नहीं कर सकता क्योंकि मेरा इंडिया अच्छा है। अब दोस्तों, आपने देखा, आपके मन में आ रहा होगा कि अनीता जी को 3 का दंड देना चाहिए। वो वर्ब मैंने ली थी, उन्होंने भी वही वर्ब ले ली, लेकिन चूंकि वो नई है इसलिए मैं उनको 3 का दंड नहीं दे रहा हूँ। अपन सब वर्ब बदलने का राउंड खेल रहे थे, गेम खेल रहे थे। और दोस्तों, अगर मोबाइल एकदम अचानक पूरा बंद हो जाता है तो उसको नुकसान पहुंचता है, इसलिए समय भी हो गया है तो मैं विदा सर लेता हूँ। सर लास्ट। नहीं बेटा, हमारा मोबाइल गड़बड़ हो जाएगा। व्हाट्सएप में अपना सेंटेंस भेजो, कोई ना कोई उत्तर देगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, सी यू टुमारो, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। Shivang, Guys, Shivang, can you uh, can you uh, दीपिका any नहीं, date दीपिका म्यूट योर, to प्लीज म्यूट योर सेल्फ। अभी कंटिन्यू करोगे? कंटिन्यू कर लेते हैं। ओके निधि। Shivang, can you imitate to frighten your sister? No, Didi, I cannot anything to frighten my sister. शिवांग, क्या आप अपनी बहन को डराने का इरादा कर सकते हो? नहीं, मैं अपनी बहन को डराने का इरादा नहीं कर सकता, पिटवाने का You will, विचार है का। yeah, you will be written that one. Who is ready for? आई एम रेडी। कोई भी आंसर कर देना। कैन यू इंटेंड आई एम टू रेडी। कैन यू इंटेंड टू कंटिन्यू द क्लास वन मोर आवर? यस Yes. दीपिका, आई कैन इंटेंड टू एक्सटेंड, टू कंटिन्यू